international theme for Women's Month is Choose to Challenge. And we wanted to kind of, go out to different women out there to understand what is it that is choose to challenge for them. And, how have they chosen to challenge things around them. So, it's beautiful. This is the fourth session or the fourth episode that we have in this week, and every woman who's come in here has chosen to challenge things differently. She's chosen to challenge a lot of the beliefs, a lot of the processes, the mindsets that have not been serving them well. And I'm so glad today that I'm getting to speak to Rachna Sethia here. So, Rachna is the founder and the director of Bliss Yoga Studio. She's got an interesting story to share with us. But before that, she's actually a graduate in Yoga Shastra. She's a yoga guru herself, and after graduating, she's built this up. She's built a career for herself in yoga, and when I met her, I think many years ago, when I met Rachna for the first time, what I really liked about her was she went beyond the regular asanas. Her concept, her philosophy of yoga was so different. It was so spiritual, and which is what I wanted to bring out for everybody here on this particular platform through Yugma. The other thing about Rachna is, while she's building up her business, building up her, yoga practice, she's also touched lives of so many women around her. She's actually, she's been recognized for that contribution that she's been having to numerous women who changed, their lifestyles, who changed the way they look at the world around them. And it's such a pleasure to have you here, Rachna. Thank you so much for being here. Yeah, thank you for inviting me, Minu, here. I'm so glad to be here with you all. Yeah. Yeah, you're welcome. So, So, yes. yeah. No, go ahead. You were saying something. Yeah, I was like, it is so good that my student is taking my interview today, and I'm feeling so comfortable, and I'm feeling so proud that you are doing such a noble job. And in this time, like if we are doing something for women, so it is a great thing to take pride of. Yeah. Absolutely, absolutely. And I think a lot of our viewers, a lot of people who are a part of the Yugma family are students, are women who are, or men for that matter, who are in the age group of, say, anywhere between 20 to 25. I think a lot of our thoughts, our beliefs get formed at this point of time. We're ready to step into newer challenges at this point of time. And any support that's given to us at this point of time actually stays with us in our careers, in our lives ahead. It actually shapes our lives ahead. So happy to be, here with you, and actually, translating this wisdom to so many young minds today. So let me start with, a question which I have since so long, actually. So, we live in this world where there are traditional careers, where at least, the way I saw when I was growing up, the careers, when somebody said careers, it would mean either, you've got to be an engineer, you've got to be a doctor, you've got to be a CA, or you've got to do your MBA at some point of time. But you chose yoga as a career. You chose to graduate in yoga. So what is the story behind that, and आपने वो कैसे डिसाइड किया कि मुझे योगा में ही लाइफ बनानी है अपनी? Yes. So if I want to start, I will say I was a very ordinary girl, जैसे हर लड़की रहती है. And I would like to mention that I am not from a fitness freak family. I was 360-degree a different person, Minu. If you'll listen my lifestyle 20 years ago, you will say, oh, really? Means I was a girl,
was a junk food lover, late riser, and what not. You can say at midnight, me and my father used to order from the restaurants, hotel, and we would hog on that, and we will never ever pleasantly eat mom ka hath ka khana. We always used to refuse it. And 360 degree, I was a different person. I was a very ordinary girl, but there were few questions always in my mind from the childhood. That spiritual questions were there, that why we are living, and why, what is the worth of living this life, what is the worth of my life. So what is like why I am born was a big question which always arise. So ultimately I grown up, and then वो एक ऑर्डिनरी लड़की की जैसी पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन होता है और उसकी शादी होती है. बट माई स्टोरी स्टार्टेड आफ्टर माई डॉटर्स बर्थ व्हेन शी वाज 5 years old. सब कुछ सेट था लाइफ में. आई वाज अ हैप्पीली मैरिड गर्ल and with a beautiful daughter, with a very beautiful family. मगर फिर भी कहीं कुछ कमी लग रही थी. मीन्स आई वॉज फीलिंग लाइक समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ. मैं यही सब करने के लिए नहीं हूँ. मीन्स मेरे में है कुछ जो मुझे करना चाहिए. And again that spiritual questions were roaming around me, and I thought I found all the questions answer in yoga. So slowly and gradually I started reading books about yoga, and then I found that I should go for that. So I pursued for the graduation. Then I learned many things, many asana practices, and then I parallelly I started teaching also to the students. तो जैसे जैसे पढ़ाते गए वैसे वैसे जानने मिला कि मुझे ये सीखना ज्यादा जरूरी लग रहा है. माय स्टूडेंट्स नीड दिस नॉलेज मोर. सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ाई चलती गई, ये सीखना चलते गया, ये टीचिंग चलते गई, एंड स्लोली वी बिल्ट अप दिस position which we are here, which we are there today. So this is a small story. I will really say that I was such a different person 20 years ago. एंड अगर आज आप मुझे बोलो कि ये खा सकते, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ये मैं ऐसे नहीं खा ही नहीं सकती हूँ. So it's like that. Yeah. Lovely. And I think the beautiful part about this whole story was there was a quest to identify your purpose. You know, ये वाली जो चीज है ना, हर एक जन्म में कभी ना कभी आती है कि why do we exist? You know, what is that purpose? What are we meant to do on this planet? And you know, that kind of leads you to search for a path and say that this is what I'm passionate about. In fact, in one of the sessions that we had, a student actually said that, you know, I'm so glad that I'm talking and I'm thinking about my purpose right now when I'm 22. Because ये चीजें कभी कभी हम 30s में सोचते हैं, कभी 40s में, हर एक का एक जर्नी होता है. But you know, when the student said कि 22 में I'm thinking about my purpose, I think it's a big thing, and it is a big thing to have those questions in mind. So I'm so glad you touched upon it. Thank you. Yeah. So मीनू, आज से अगर 20-25 साल पहले ये सिनारियो नहीं होता था इन अ फीमेल्स लाइफ. स्पेशली एक बोले तो मोनोटोनस एक रूटीन होता था कि लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेती है, फिर वो शादी करती है, तो माँ बाप का भी वही पर्पस रहता है कि बस अच्छा घर मिल जाए, अच्छी फैमिली मिल जाए, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट. पर आज की जनरेशन मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचती. दे आर मोर करियर फोकस, दे आर मोर, they want to do something on their own, and then they want to go for another thing. So that is a good change in today's world now. So I'm really happy कि अभी लोग सोचते हैं कि हम पहले कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, फिर हम आगे सोच सकते हैं लाइफ के बारे में. Yeah. Lovely. So, you know, in some of your classes, in some of your, you know, in some of your talks before, I have heard you speaking about yoga beyond asanas. Like, ना हमें लगता है ऐसे twist and turn किया, थोड़ा सा flexible, मतलब थोड़ा सा इधर उधर move किया, and that is yoga. But you've taken the concept of yoga beyond the asanas. So can you talk some bit about it? Yeah, मीनू, एक्चुअली योगा हमको लगता है कि योगा मतलब आसन करना हो गया, पर्वतासन करना हो गया, ताड़ासन करना, एंड वी आर टेकिंग मोर इट ऑन अ फिजिकल एस्पेक्ट.
but actually it is not actually meant for only physical aspect. योगा बना ही स्पिरिचुअल विजडम के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए है. आप अगर देखोगे तो योगा इज सो एंशियंट. इट इज लाइक शिव जी और पार्वती जी भी योगा करते थे, तो ये इतना पुराना है. तो योगा का आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो वहां पर कहीं भी आसन का मेंशन किया ही नहीं है. इट इज 99% इट इज ऑन द मेडिटेशन एंड इट इज इन द लाइक आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए बना है. तो योगा हमेशा से वो है, बट फिजिकल एस्पेक्ट दिखते हैं, आसना दिखते हैं, तो हम उसे कंसिडर करते हैं. हम मानने लगते हैं कि हाँ चलो योगा करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी, योगा करने से आपको ये डिजीज से रिलीफ होगा, या योगा करने से आपका वेट लॉस होगा, विच इज अ वेरी फेमस ट्रेंड गोइंग ऑन. तो हमारे पास भी मीनू स्टूडेंट यही रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं कि मैम हमको वेट लॉस करना है, मेरी शादी है, मुझे ये फंक्शन है, तो मुझे 3 महीने में वजन कम करना है. एंड वी टेक देम विद द सेम प्रोस्पेक्टस ओनली, बट अल्टीमेटली आफ्टर अ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग दे रियलाइज कि सिर्फ वेट लॉस और इंच लॉस के साथ उनको बहुत सी चीजें मिल रही है. एंड दैट इज वेयर वी विन ऑलवेज. तो वो अपने आप फिर वही बताते कि मैम नाउ आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक. तो ये सारी चीजें अपने आप अनुभव होती हैं उन्हें, और ये उनको फिर बाद में समझ में आता है. अगर हम पहली बार में उसे बताते हैं तो वो शायद हमसे मानेंगे नहीं, हम मतलब दे विल नॉट अग्री टू अस. बट दिस ऑल थिंग्स आर ऐसे हैं कि आप जब खुद करो, रियलाइज करो, तभी आपको पता चलती है. तो योगा का जो अर्क है वो आपको थोड़े टाइम के बाद ही आपको महसूस होगा ही होगा. दैट इज फॉर, आई एम श्योर फॉर दैट. Yeah. So in fact, in my experience of yoga, a lot of thoughts come to me, a lot of ideas come to me when I am doing yoga, because I think that's the time when the mind is clear. I'm slowly into the flow with the practice. And then a lot of times, the mind is calm. And most of the times the mind is calm. And that's when the ideas start coming in. Yes. Like for example, curating this series, ये जो Women's Week का series था, ये योगा करते वक्त मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए. Because there are so many students out there, so many women out there who will find inspiration from these stories. So why not take these stories out to the world? And that's Right. when I realized the power. So it's not just about, those twists and turns and, difficult asanas, but it's really about being with your own self. And that's been my biggest learning, with yoga. It's just connecting with your own self. Right. And when जब connection बनता है तब ideas आते हैं. Right. तो योगा एक ऐसा टाइम है ना मीनू के यू आर विथ यू टोटली, लाइक 100% आप ही के साथ हो. हम भले कहते कि हम आज मैं ब्रेक पर हूँ या आज मैंने छुट्टी ली है, बट व्हाट वी डू, either we will watch TV, either we are on the mobile, or either we are with somebody, or we'll go for shopping. We cannot sit ideally. और यही एक क्या कहते हैं, एक बुरी आदत हमने डेवलप कर ली, that we cannot sit like peacefully. हम restless हैं 99%. But when we are doing yoga, have you ever sat and have you felt your breath बिना कुछ किए? हम नहीं करते हैं. Either we are sleeping, either we are eating, either we are going somewhere. तो ये 1 घंटा है जो आप अपने साथ ही बिताते हो, and that is such a beautiful feeling which I cannot actually express. ये जो करते हैं उन्हें खुद को मालूम ही होगी that it actually makes you, it gives you time for yourself. और आपने जैसे कहा कि आपको आइडिया आती है, ऐसी मेरे बहुत दूसरे स्टूडेंट, one of my student was a interior designer. So she also said कि yes मैम मेरी क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पे आ गई है, बिकॉज जो हम नहीं सोच पाते थे अब वो कलर्स के साथ, वो डिजाइन के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं. डिटेलिंग में हमारा बहुत ज्यादा अच्छा काम होने लगा है. सो आई थिंक सो ये क्लियर करते जाता है माइंड के जो ऑब्स्टेकल्स हैं छोटे छोटे, and it gives you that, it leads the path towards all what you actually need. So in that way it really helps a lot. So that brings me to this concept of mindfulness. We've been speaking a lot about mindfulness, and हर एक का एक अलग definition होता है. So
From a yoga teacher's perspective, how do you see mindfulness, and वो exactly उसको हम कैसे अपने lives में लेके आ सकते हैं? माइंडफुलनेस इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट, मगर मैं आपको एक छोटे से साधारण से एग्जाम्पल से कहूँ तो माइंडफुलनेस मतलब कुछ भी नहीं, जो आप अभी हो, अलर्टनेस, वो अवेयरनेस, बस आप अभी मीनू हो, आप मुझसे बात कर रहे हो एंड यू आर 100% इन टू दिस मोमेंट। तो बस यही एक माइंडफुलनेस है। आप जो भी कर रहे हो या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप वो चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, यू आर गिविंग योर 100%। योगा में एक बहुत ब्यूटीफुल सूत्र है, कर्मशु कौशल्यम। कर्म मतलब द एक्शन विच वी डू, एंड कौशल्य मतलब उसमें माहिर होना। मतलब ये एक फर्स्ट स्टेप है माइंडफुलनेस की तरफ, कि आप जो भी काम करते हो उसमें आप आपका 100% दीजिए। मैं आपको अगर एक कॉमन एग्जांपल दूं तो हम हमेशा क्यों कोई भी काम करते हैं तो भागते रहते हैं, वी आर ऑलवेज इन द रश। हम ब्रश कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कभी मैं नहा लूं, मैं नहा रही हूँ तो मैं सोचूंगी कभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूं, ब्रेकफास्ट कर रही तो यू आर थिंकिंग अबाउट योर फोन कॉल्स, योर ऑफिस वर्क। इफ यू आर इन ऑफिस वर्क यू विल थिंक अबाउट लाइक आपकी मीटिंग है शाम की, उसके लिए। सो यू आर नेवर ऑन दैट मोमेंट, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, और यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो वो चीज से आप जो कर रहे हो उसका मजा भी आप नहीं ले रहे हो, एंड यू आर नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग दैट थिंग होलसमली। तो बस यही यही जब आपकी विजडम आ जाती है कि मैं जो कर रही हूँ अभी मैं ये पहले अच्छे से कर लूं, मैं इसे पूरी तरह निभा लूं, एंड आई एम हैविंग दिस गुड टाइम। एक खाना बनाना ही क्यों ना हो, एक अगर मैं जनरल फीमेल के लिए बोलूं, हाउसवाइफ के लिए बोलूं, या एक स्टूडेंट के लिए बोलूं कि पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसे इतने अच्छे से समझ के, हम अगर उसी चीज में हैं तो, और उसी मोमेंट को आप फील करके लो, तो दैट इज ओनली माइंडफुलनेस। इसके लिए आपको कोई घंटों मेडिटेशन करके महान नहीं बनने की जरूरत। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक। तो ऐसे छोटे छोटे अलर्टनेस से, छोटे छोटे खुद से कमिट करके आप अगर काम कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली अचीव दैट माइंडफुलनेस, एंड इट इज वेरी इजी प्रैक्टिस। बस आपको सिर्फ वो चीज की तरफ एक रिस्पेक्ट देनी है कि यस, अगर मैं अभी ये कर रही हूँ तो मैं अभी पूरा ध्यान में इसी में दूं। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा डेफिनेशन कम आइडिया है कि टू बी 100% इन दैट मोमेंट इज अ माइंडफुलनेस। तो आपने जैसे बताया कि हम जब नाश्ता खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, so we're already thinking of the day ahead, but वो बहुत ही subconsciously होने लगता है because our mind is tuned to behave like that, to always think of the next moment. Right. How do we catch that? मतलब उस वक्त how do we switch and say कि no, I need to focus on my breakfast right now and see what am I eating? Yeah. सो मीनू, हमारे जो इंडियन कस्टम्स अब अगर आप देखोगे तो एक पता है हमारी, आपने अगर अपने नाना दादी को देखा रहेगा तो दे यूज टू टेक अ बाइट और वो थाली के बाहर रखते थे और एक छोटा सा प्रेयर करते थे। डू यू आपने कभी कभी देखा रहेगा किसी को, अपने एल्डर्स को? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कस्टम था, इंडियन कस्टम। ये क्यों था? ये इसी चीज के लिए बना था कि ये माइंडफुलनेस हम खाने की तरफ लाए, दैट यू आर डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट ग्रेटिट्यूड फॉर द फूड एंड ग्रेटिट्यूड टू द नेचर, कि आपको ये खाना मिल रहा है और आप वो खाने को प्रेज कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, और उसमें से एक पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा बाहर रख रहे हो। मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि वो टुकड़ा किसके लिए रखते थे, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रेयर, कि आपको वो छोटा सा चीज रखना है एंड यू जस्ट हैव टू लाइक गो डाउन टू द फूड एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो ये करने से एक भावना अपने आप आ जाती थी कि हमें रिस्पेक्ट करना है खाने को, और जो मैं अभी खा रहा हूँ उसे मैं प्यार से खाऊं, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस फूड, राइट। तो ये सारी कस्टम क्यों पहले थी? ये इसी चीज के लिए थी कि हम अपने ब्रेकफास्ट को या अपने लंच को, डिनर को, या हमारे खाने को हम पूरी तरह से खा पाए, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए।
सेकेंडली मीनू, मैं आप बोलूंगी कि आज की जनरेशन में हम जो टीवी देखते देखते या मोबाइल पे बात करते करते, इवन वी चैट, वी रिप्लाई पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग इन अ बिजी वर्ल्ड। तो कभी कभी एक मस्त काम हो जाता है कि हम मोबाइल के साथ चैट भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और हम खा भी रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअली क्या खा रहे हो। सेकेंडली, अगर साइंटिफिकली अगर आप देखते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। इफ यू आर लाइक ध्यान दिए बिना आप अगर स्पीड में खा रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल आपका ज्यादा दिमाग में जा रहा है रादर देन द डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑन दैट टाइम, राइट। हमारा ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होता है जो एज पर द ऑर्गन रिक्वायरमेंट। आपका जो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है वो ऑर्गन को आपका बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाएगा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलना चाहिए उतना अमाउंट ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं, एंड दैट लीड्स टू गैस्ट्रिक एसिड एंड इंडाइजेशन एंड एसिडिटी एंड ऑल इश्यूज। सो आप अभी देखते रहोगे कि जो इश्यूज 50 साल में हो रहे थे वो अभी 20s में होने लगे हैं। so many student मेरे पास आते हैं, they are having migraine issue, they are having head pain, they are having acidity, gas issue। ये सब ये छोटी छोटी चीजों पे जो लाइफस्टाइल हमने बना लिए वो एक वजह है इसकी बड़ी। तो हम इसमें सबसे बड़ा एक ही काम कर सकते हैं मीनू, अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो यू हैव टू टोटली डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मोबाइल एंड टीवी फॉर द फर्स्ट। अगर ये दो चीजें नहीं रहेंगे तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि आप बैठे भी कहाँ हो, आप आपके घर में हो, ऑफिस में, यू विल सी एटलीस्ट टू द फूड और उसे चेरिश करो। आपको खाने मिल रहा है, आपको फ्रेश फूड मिल रहा है, आपको यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच फूड, डिलिशियस फूड, उसे अच्छे से आराम से खाओ। वो फीलिंग के साथ खाने से स्पिरिचुअल नहीं बट साइंटिफिकल भी जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं बॉडी से, दैट विल हेल्प टू एब्जॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट्स जो हमें वही खाने में से मिलने चाहिए, वो पूरी तरह होंगे। सेकेंडली, मैं और एक उसका नेगेटिव इफेक्ट बताऊंगी कि जब हम टीवी देखते हैं और जो सीरियल्स या जो भी कभी वो ड्रामा देखते हैं एंड अननेसेसरीली वी फील दैट ट्रॉमा जो हमारे साथ नहीं हो रहा है बट वो एक्टर्स दिखा रहे हैं और हम फील कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग पे फॉर इट बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बट वी आर जस्ट गेटिंग द नेगेटिविटी। तो वो ट्रॉमा की वजह से भी एसिड लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी में, एंड यू आर लाइक नॉट ईटिंग दैट फूड प्रॉपरली, यू आर नॉट चीविंग एंड यू आर जस्ट गल्पिंग इट। आइदर योर डाइजेस्ट, आपको पता है कभी कभी बोलते कि इसको टेंशन में लूज मोशन हो गए, हैव यू हर्ड अबाउट इट? सो व्हाई इट हैपेंस, लाइक टेंशन में लूज मोशन का कनेक्शन क्या है? देयर इज नो कनेक्शन, राइट? वी फील दैट देयर इज नो कनेक्शन बट देयर आर कनेक्शन। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा इमोशनल बिहेवियर के साथ चलती है। तो हम जैसा अननेसेसरीली वो हम ड्रामा देखते हैं, ट्रॉमा देखते हैं, वो आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम ऑफ सीरियल, माय डॉटर यूज्ड टू सी दैट, वो क्राइम पेट्रोल काइंड ऑफ हॉरर थिंग्स एंड लाइक ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं देखो प्लीज। either you can just shut down it or either you can have a, if you are very much addicted to see TV while your food, तो कुछ अच्छा हंसने वाला देखो एटलीस्ट, तो आप शांति से खा सको। सो जस्ट यू हैव टू स्विच ऑफ दैट थिंग्स। आप खाने को देखो पहले, जस्ट हैव इट विथ योर आईज फर्स्ट, देन स्मेल इट, उसे पूरी तरह लो, उसे आराम से खाओ। और आजकल तो हम डाइट फूड खाते हैं, वैसे भी 4-5 रोटी में से एक रोटी पे आ गए हैं, और वो एक रोटी भी हमने ऐसे गाई गाई में खाई तो देयर इज नो सेंस ऑफ हैविंग दैट फूड। तो बस यही करना है हमें, आराम से थोड़ा रिस्पेक्ट देके खाना है, दैट्स इट। Nice. And you've actually simplified the concept of mindfulness. कि हमें लगता है कि mindfulness मतलब बहुत सारा meditation करना पड़ेगा, एक जगह पे बैठ के ध्यान देना पड़ेगा, but when it comes to food, it's so simple. You just need to cut off all the distractions and just be with the food and just enjoy the food that you are eating. Yes. So beautiful. So, how is this? How does this whole concept of mindfulness actually helps us in managing our bodies well? वो मतलब one thing which I've learned and through yoga is that the body is the only companion that you have throughout the life.
तो Yeah. ये मशीनरी को अगर ठीक ठाक चलाया तो लाइफ इज still better, life is Yes. getting better. So how do we bring in that concept of mindfulness when we are managing our own selves, Yes. be it body, be it mind? Yeah. तो माइंडफुलनेस सिर्फ बॉडी के लिए ही मैं नहीं कंसिडर करूंगी, ये हर चीज में काम आता है। और ये जब आप सीख गए, वंस यू आर लाइक यू हैव लर्न दिस टेक्निक, और ये जब आपको रियलाइज हो जाता है कि ऐसे करना चाहिए, तो आप हर चीज में प्रोग्रेस कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली अबाउट द सेल्फ और नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअल ब्रिंग अप, ये करियर वाइज बोलो, पढ़ाई बोलो। तो जो एक सबसे बड़ा फैक्टर हम मिस करते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। आपने काम भी किया तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, या आपने कितने भी लिमिट तक आपने प्रोग्रेस कर लिया, दो सम पीपल फील के नहीं, ये नहीं है, मैं कुछ कम है, दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर, एंड विच इज लाइक एक्चुअली आप इतना सब कर चुके तो अभी आपको क्या चाहिए, राइट? So when you are mindful, when you are achieving that mindfulness, you are. आप म्यूट पे चले. Sorry, there was a call. Yeah, am I audible now? Yes. Yeah. So once you are clear in your life, तो आपको हर लाइफ की जो stages हैं, from the beginner to the like intermediate stage or final stage, आप उस जगह पे खुश रहना सीखते हो, which is the most important thing in life. हम सब कुछ क्यों करते हैं? हम खुश रहने के लिए करते हैं, राइट? वी डू एवरीथिंग टू बी हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस आप उसके जर्नी में भी फील करोगे वंस यू आर एडिक्टेड टू माइंडफुलनेस। और जिसे ये आदत पड़ जाती है, तो मीनू मैंने कहा ना, एक बहुत सिंपल सी चीजों में भी इवन यू विल फील गुड डूइंग ब्रशिंग ऑल्सो योर टीथ, even you will like be in pleasant all the time, you will be happy talking to your friends, eating, sitting, being at your home. कभी कभी मैंने कुछ लोगों को देखा है, they are so addictive to work, they cannot sit at home, they are so restless. तो आपको अगर छुट्टी मिली है, आपको अगर घर पे बैठने मिला है, तो आप उसे एंजॉय करो, तो वो हैप्पीनेस माइंडफुलनेस से ही आएगी। तो ये लाइफ में बहुत ही सारी फैक्टर्स को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। सेल्फ तो ये हर स्टेप में छोटी छोटी चीजें अगर आप देखोगे तो इट इज अ बिग विजडम कि आप हर मोमेंट को खुश रहना सीख रहे हो, हर मोमेंट को पाना सीख रहे हो, प्लेजेंट रहना सीख रहे हो। इससे बड़ा मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। So just for our viewers, so I'm reading this book called 40 Rules of Love, and this is a story of Rumi. I don't know how many of you have heard about Rumi. So Rumi was the famous poet and बहुत ही deep, 1200s में he used to be in the 12th, 13th century he survived. One of the beautiful things he writes about this is what, ma'am just said was, past is an interpretation, future is an illusion. राइट, पास्ट में जो हुआ वो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उसको अलग अलग मीनिंग्स, अलग अलग स्टोरीज दे रहे हो। फ्यूचर इज एन इल्यूजन, जो हुआ ही नहीं है, आप उसके बारे में जब सोचते हो तो आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हो। ऑल यू हैव इज द प्रेजेंट मोमेंट। या सो राइट नाउ वेयर यू आर इज ऑल यू हैव, and I just loved it. I thought this is so true. हम या तो पास्ट में रहते हैं, अपने स्टोरीज माइंड में बनाते रहते हैं, उसने ये बोला, इसने वो बोला, this is what I did, this is where I failed, and future we don't know anything about it, so it's just an illusion. But right now what I choose to do with these moments is, it's all that is. And thank you for bringing in that definition and reminding me of this book, which was like sitting right beside me. Yeah. So I'll just take a pause, and does anybody else here has a question for Rachna, or any thoughts? Like, kabhi kabhi baat karte karte so many things come up for us. So are there any thoughts that you have, anything that you want to ask her or share with her? Just unmute yourself and feel free to just talk. Meenu, you are asking me?
No, no, I'm asking the group. The एक्चुअली student. आपका थोड़ा पॉज हो गया था. अच्छा, Okay, pause yeah, हो गया था. fine. हाँ, sorry. Sneha, hi. You had a हाँ. question? Hello, Meenu ma'am. Yeah. So good evening, Rachna ma'am. Ma'am, I have a question to you. As we are talking about mindfulness and getting into meditation and having that happiness inside, but I have been like trying to practice it. To be honest, I'm a a beginner in this thing. And whenever I try to concentrate on thoughts, जैसे आपने अभी discuss किया और बताया कि we have multiple things. So being a student, आज मेरा ये class है, ये assignment है, and it goes on. So even I would say even for 2 minutes I'm not able to concentrate and stop all those thoughts and get into the meditation mode. So what you will suggest for beginner people like us, like how we can attain those state? I forgot your name. I didn't hear your name. Ma'am, this is Sneha. May I know her name? Sneha. Neha. Sneha. Okay, so Sneha, yeah, I got it. So Sneha, I would say कि कभी कभी है ना हम सोचने से ही थक जाते हैं, and then we are totally energyless when we are going for actual work. तो बस ज्यादा कभी कभी नहीं सोचकर सिर्फ आपका जो मेन चीज है या कोई आप समझ लो, हम सोच रहे हैं कि मैं आज ये महीने ये करूंगी, 6 महीने बाद मुझे ये करना है, इस साल के बाद ये करना है. Rather than going for so long, we can just think for today's work, and you can just highlight that work or that thing which you are interested to do, और आपको जो आज करना जरूरी है, and just start doing it. कभी कभी सोचने से हम बहुत थक जाते हैं, तो just get up and just go for and just finish it off. जो काम आपने सोचा है वो बस कर डालो. तो वो है ना, I always love that Nike slogan, do it. Yeah, so just go and do it. फिर आपको जब पता चलेगा कि ये बस इतना आसान था करना, it was not so difficult जितना मैंने सोचा था, आपको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप धीरे धीरे वो छोटे छोटे टास्क टाइम पे करने लगोगे. तो ये टास्क सोचना, उसे मैनेज करना, उसे डिजाइन करना, हम पता है एग्जाम्स में हम भी ऐसे थे कि मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये दिन पे मैं ये पढ़ूंगी, बट एक्चुअली हम उस दिन पे कोई पढ़ नहीं पाते थे. वो सोचने में, टाइम टेबल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करते थे. उससे अच्छा कि मैं आज या मुझे आज ये काम करना है, वो करके मैं फ्री हो जाऊं. सो आई थिंक सो यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट एंड सी हाउ इट्स हेल्पिंग यू. Thank you for your input, ma'am. And thank you, Meenu ma'am, for giving us this platform wherein we can have those live examples in front of us, live role models, and try to implement them thought through. Thank you. Our pleasure. So, one thing which I learned in her class, and one which is something I keep practicing. So there are times when you don't have time. Genuinely, you don't have time, and especially when you have one thing lined up after the other, and आपको लगता है मैं आज meditate कैसे करूँ? One thing I learned from her and in the class was that sometimes you don't need that. Just you sit down for like 2 minutes and observe your breath. In and out. Just see how it's working. Yeah. That's a meditation in itself. You kind of you're just bringing the focus back on your own self, and that's so beautiful. And then when you bring the focus back on yourself, you start thinking better, you start feeling better. And this has been one of my biggest takeaways from yoga, that you don't really always of course I give myself that time every day for yoga and meditation, but some days you genuinely are stuck up. And then the best thing that works is just sit back for 2 minutes. 2 minutes तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं in a day. Just sit back, and it really works well. So thank you for that. Yeah. मीन आप देखोगे तो लिफ्ट में भी जो आप देखोगे, एक मैं लाइव एग्जांपल दो, लिफ्ट में हमें कितनी सेकंड लगती है नीचे उतरने? हार्डली 10-12. उसमें भी लोग मोबाइल लेके निकालेंगे. हाँ, मीन्स यू आर नॉट रेडी टू जस्ट बी लाइक दैट फॉर 10 seconds ऑल्सो. सो वी आर सो डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल. हम कितना वो चीज पे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट बोलो कि आदत बोलो, कि हम 10 सेकंड में हम खाली नहीं रह सकते हैं. वी वांट समथिंग टू पुट इन अवर माइंड. तो यही सब चीजें हमें थका देती है. हम लिफ्ट में ऐसे भी बैठ सकते हैं ना कि वी कैन ऑब्जर्व पीपल, वी कैन जस्ट
सिट लाइक दैट और स्टैंड लाइक दैट। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि बिना मोबाइल के हम 10 सेकंड भी नहीं गुजार पाते हैं। तो ये सब चीजें अननेसेसरीली जो डाटा है वो हमारे दिमाग में डालते रहते हैं, हम स्वाइप करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, बहुत सब दिमाग में लेके घूमते हैं, और फिर फटीग होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। दैट ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। शांत रहना, खुश रहना, ये सब हम भूल ही चुके हैं। और मेडिटेशन के लिए हमें टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं। मीनू अगेन आई विल से, जो भी काम आप कर रहे हो वो पूरी निष्ठा के साथ या पूरे मन के साथ करना भी एक योगा ही है। आपको खास बैठ के उसके लिए ओम नमः शिवाय घंटों तक बोलना नहीं है। जस्ट आपको 2 मिनट आप बैठे, आपने अपने रियलाइजेशन किया आपको आज क्या करना है, वो सोचा भी, आप खुश हो, आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। इसीलिए तो पहले के टाइम में प्रार्थना बनाई गई थी कि यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द सुप्रीम पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब छोटी छोटी चीजें यही रियलाइज कराने के लिए थी। मगर आज हम गाय में, हम मंदिर में भी जाके फटाफट भगवान ये कर देना, वो कर देना, ये सब वो जो कंपल्सरी जो करना है वो भी फटाफट करना है हमें, और हम निकल आते हैं। तो हर चीज में हमें घाई है। एवरीवेयर वी आर हैविंग दैट hastiness that leads to all the fatigue and like unsatisfaction and lot of things, lot of negative things. तो बस जो भी कर रहे हो शांति से करो, आराम से करो। लाइफ में यही करना है। मुझे लगता है लॉकडाउन में बहुत लोग सीख चुके हैं ये चीज कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है वही करना है, जहाँ हो वही करना है आपको। तो शायद थोड़ा बहुत तो ये चीज से फर्क पड़ा है। या Absolutely. Any other questions? Thank you, Sneha, for asking that. Thank you, ma'am, for the opportunity. If you don't want to ask, you can even put it on the chat box. So, one question which I sorry to interrupt. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हमारे ये ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगी। पढ़ाई भी ऐसी है कि एक ही चीज है ना, मैंने नोटिस किया कि वही जो चीज है उसको बहुत बड़ा बड़ा बना के बुक में डाला जाता है, और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है। तो इट लीड्स टू बर्डन टू इवन स्टूडेंट टू रिमेम्बर एवरीथिंग। तो मैं एक ये भी चीज बोलूंगी कि हमेशा जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है, उसका अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करके समझ लो, तो दैट इज गोना हेल्प यू फॉर द थ्रू आउट द लाइफ। बुक पढ़ना, एजुकेशन का मतलब ही वही था कि आपका स्पिरिचुअल विजडम भी आए आपके अंदर, आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। हम सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए या करियर बिल्डअप के लिए नहीं पढ़ते हैं। आप अगर पढ़ाई को देखोगे, मैं MBA पढ़ाई और इसकी बात नहीं कर रही, एक जनरल पढ़ाई की बात कर रही हूँ जो हम शुरू से करते आते हैं। तो इफ यू आर जस्ट एब्स्ट्रैक्टिंग दैट मटेरियल फ्रॉम योर बुक्स, और आप उसे हाईलाइट करके अगर आपकी खुद की लैंग्वेज में अगर आप पुट ऑन कर सकते हो, तो काफी कुछ जो पढ़ने का बोझ है या जो मगअप करने का बोझ है वो कम हो जाता है। एंड व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, आप आपकी खुद की जबान से लिख सकते हो। आई डोंट नो, मुझे भी काफी साल हो गए पढ़ाई पूरी किए, अभी वो सब टीचर्स एक्सेप्ट करती है कि नहीं खुद की लैंग्वेज में लिखना, आई डोंट नो दैट। बट मैं हमेशा से ही ऐसे मानती हूँ कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका अगर आप एक्स्ट्रैक्ट लेके उसे खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके लिए वो बहुत सब्जेक्ट इजी हो जाता है। That's true actually. So, एक चीज जो हम लोग युग्मा में हमेशा बोलते रहते हैं is the whole concept of learning. So any learning should not just prepare you for placements. It should prepare you for life. So आप 2 years of MBA में या 4 years of engineering में या कहीं पे भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, you have to always think of those 30-40 years that you're going to work. So ये 2 सालों में what all skills can you pick up? It's like a lab.
it's an experiment. आप क्या क्या कर सकते हो in those 2 years so that you are prepared for those 30 years, 40 years ahead. कभी कभी वो हमारा विजन बहुत नैरो हो जाता है कि which is, see, placements are important, but beyond placements there is a life, yeah, which is, and somehow, at least, you know, I've seen somehow students don't feel prepared for that life ahead, and that's also one of the reasons, you know, why we are getting people to come and talk to you, so that, you know, they share their life experiences with you, and then you're able to kind of understand that, okay, now is the time when I need to get ready. Now is the time that I need to absorb everything and, you know, learn things so that I'm able to do better in my life ahead. So that's so really important, and thank you, आपने वो, you know, वो point यहाँ पे लेकर आए, because it's so important for, you know, everybody to be actually, you know, learning things and not just remembering things, or not just, you know, grasp, ये वो जो आप बोले ना कि rote learning जो होता है, it's not just about that rote learning, it's about actual learning. So Vedashri, thank you. This was actually my next question to Rachna ma'am. So when things don't go well, I get very anxious. So it's a question for you. When things don't go well, I get very anxious and feel so restless that I can't even sleep and concentrate on my studies. How can yoga help me overcome this feeling? Okay. So my answer would be, लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी, एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. भगवान राम को भी सिंपल लाइफ नहीं मिली थी, तो हम तो इंसान. तो एक चीज मान लेनी चाहिए कि लाइफ ऐसी होनी है. कभी भी आप अगर कोई भी चीज देखोगे तो वो सीधी जाएगी तो आप खुद ही बोर हो जाओगे. आई विल नॉट से कि इतना भी अप्स एंड डाउन होना चाहिए कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, बट इवन दिस इज अ चैलेंज कि आप आपको ऐसे टाइम में कैसे संभालते हो. ये एक सबसे बड़ा सेल्फ डेवलपिंग चीज है, एक बड़ा सेल्फ डेवलपिंग एटीट्यूड है. तो आप अभी जब स्टूडेंट एज में हो, जब आप पे इतना पैसे कमाने का या घर की जिम्मेदारियां संभालने का बोझ नहीं है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू लर्न टू हैंडल सच स्मॉल एंशियसनेस, रेस्टलेसनेस. तो आप कैसे डील कर पा रहे हो उससे. सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे टाइम में एक ही चीज सोचो कि ये टेम्पररी है. कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, इवन नॉट हैप्पीनेस. आप खुश भी हमेशा नहीं रह सकते हो, दुखी भी हमेशा नहीं रह सकते हो, और क्रिएटिव भी हमेशा नहीं रह सकते हो. सो एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड इवन दिस इज अ कलर ऑफ लाइफ, एंड हैव दिस कलर ऑल्सो इन योर लाइफ. लाइफ में हर तरह की चीजें आएंगी, उसे वेलकम करना सीखो. ये भी एक जो मोमेंट है वो आपको कुछ सिखा के जाएगा. आप कल उठ के बड़ी कंपनी में काम करोगे, बड़ी जगह पे बड़ी चीजें डील करोगे, बड़े रिस्क फैक्टर्स संभालोगे, तभी छोटी छोटी सेल्फ डेवलपमेंट ही आपको काम आएगी. तभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे कल उठ के कि यस आई कैन डील विद, ऐसा सब होते रहेगा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा. ये एटीट्यूड आप कब डेवलप करोगे? जब आपको ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये रेस्टलेसनेस संभालने की. तो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि आप देखो अपने आप को कैसे संभाल रहे हो. अनदर थिंग आई वुड से कि जो चीज आपको परेशान कर रही है वो उसका कारण ढूंढो कि क्या है. कोई काम पेंडिंग है या कोई गलती है तो उसे चेंज करो. काम पेंडिंग है तो आई वुड से कि कोई मेडिटेशन काम नहीं आएगा, पहले वो काम खत्म करो. उससे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है. व्हेन यू विल फिनिश दैट वर्क यू आर टोटली बॉर्डर, और वही आपको रिलैक्स कर पाएगा. मैं नहीं मानती हूँ कि काम के बोझ तले आप हो और आपको मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग करो और आपको नींद आएगी. दैट इज कम्प्लीटली अ फॉल्सी स्टेटमेंट. आपको वो चीज करना, वो जिम्मेदारी पूरी करने से ही सुकून मिलेगा. तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करो. यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बिग फाइट विच इज यू आर केपेबल टू डू इट. Vedashri, any other question? Thank you for asking that. Okay, so just one, just
ये जो पूरा एंजाइटी होता है, it suddenly hits you sometime. And a lot of times in your class and in your talks, I've heard you talk about small meditations, like where you could just be with yourself. And वो being with ourselves भी वो हमें बहुत time नहीं आता है कि how can we be with our own selves. So अगर if you had to give us some tips or tricks on how can we be with ourselves better, how would how would you describe that? Or if there is any small exercise that we could do with you, which Yeah. will help us be here, be present, it will be really helpful. Yeah, Meenu, so whenever this kind of anxiety attacks आते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं, and sometimes we don't know also कि हम ऐसा behave कर रहे हैं, हम ये अटैक आ रहे हैं, we are not realizing that. तो सबसे पहले तो वो जगह से आप खड़े हो जाओ. It is my one point कि आप वो जगह से खड़े हो जाओ and go somewhere else. अगर आप रूम में हो तो रूम से निकल जाओ, go for a walk, listen music, और अगर आपको कोई और चीज पसंद है तो वो करना शुरू कर दो. If you can meditate, so there are many tricks which we will practice today only. पर उससे पहले मैं यही कहूंगी कि वो काम जो वो जगह है उसे छोड़ दो. Get up and just go out. Sometimes even cleaning a drawer will help you to just get out of that thought. Even going for a walk will help you. Even doing painting or some cooking work also will help you. तो वो एक्टिविटी से निकल के कोई और एक्टिविटी करो और माइंड डाइवर्ट कर दो. Secondly, there are many meditational small techniques. So shall we practice one of them? Yes, right? Yes, it will be nice. Yeah. Okay. Yeah. So what we can do, just मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कर सकते हो तो करिए. मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाती हूँ. So first, just place your both the palm on your lap. आंखें खुली ही रखो. And just watch your inhalation and exhalation. आपकी जो नाक के यहाँ से एयर हम लेते हैं, the inhalation part, just feel that. You might be feeling that breaths are like very fast and it is shallow. So it is okay. Do not change the breath. Just feel it. अभी हम आंखें बंद कर देंगे. And just realize the chest movement. See how your lungs are working right now. You just have to visualize. We cannot see lungs. You just have to visualize how your lungs are expanding and contracting with your breathing. Even you can see the movement in the tummy. See how your tummy is coming out and going in while breathing. Will not try to change the breathing pattern. You just need to observe the movements of the belly and chest. Now slowly bring your hands together. Just rub your palm. Create some heat between your hands. And place it on the face. And gently down. And you can open your eyes. So in this way, we can start whatever things we want to do. Now there is one more practice. मैं आपको count दूंगी 1 to 10. No, initially I'll give you only 4 counts. Chalo. So in this 4 count, you just need to inhale. Okay. So for example, if I'm telling you 1, 2, 3, 4, आपको सिर्फ सांस लेनी है. And
व्हेन आई से स्टॉप, तभी आपको वो 4 सेकंड सांस रोक कर रखनी है अपने लंग्स के अंदर या आपके बॉडी के अंदर. एंड व्हेन आई से 1 2 3 4, तभी आपको वो सांस, आपकी ब्रेथ एक्सेल करनी है. देन अगेन विल हैव अ नॉर्मल राउंड ऑफ ब्रेथ एंड देन वी विल रिपीट दिस. फाइन? इज इट क्लियर? I'll repeat. For example, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, and exhale 1 2 3 4, and a normal round of breath. Fine? तो हम ऐसे 3 सेट करेंगे आज. ओके मीनू, चलो कीप योर आईज क्लोज. नॉर्मल ब्रीदिंग फर्स्ट. And we'll start. Inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, and exhale completely 1 2 3 4. Have a normal round of breath. We'll repeat. Inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, and exhale 1 2 3 4. Normal round of breath. One last time. I'll give you now 6 counts for everything, okay? Inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3 4 5 6, and exhale 1 2 3 4 5 6. Normal breathing. Now again bring your palms together and rub them. And place it again on the face and just absorb the heat which is created in your palms. And gently down. Relax. So this is a kind of basic practice which I think so is very easy to do and everyone can do it. And what it leads to, it increases the absorption of oxygen in the lungs and the blood streams, which helps all such hormones, जो happy hormone रहते हैं body में, वो release करते हैं. तो जब भी ऐसे anxiety attack या you are restless or you are frustrated, ये कुछ हद तक आपको शांत कर सकते हैं. So yeah. Wow. Are you feeling good, Meenu? Absolutely. I think there's these Yeah. few moments of being with our own selves and with our breath. हम breath को generally granted ले लेते हैं कि हाँ ये तो चलती रहेगी types, but जिस दिन वो चलना बंद कर देगी, that's where the problem comes in. But yeah, so it's so, I mean, the process which we've taken for so granted is actually so powerful. Like just this, I think maybe a minute, Yes. just for that 1 minute, and it clears out so many things from your mind. If you're just kind of focusing on that 1 2 3 4 and 1 2 3 4, it just helped me be with myself and my breath. Yeah. Yes. Meenu, can we have an experiment right now, if we Yes. have time? Yeah, we have 5 more minutes. Yeah. So I just want to show you all that how breath is connected with your mind and your thoughts. Okay. So I wish के सभी लोग ये मेरे साथ करें. आपको कुछ नहीं करना है. मैं आपको 2 चीजें बोलूंगी. पहले आपको आंखें बंद करनी है. Okay, so we'll just close the eyes and let your brain think whatever is coming in your mind. आंखें बंद कीजिए सभी लोग. And allow your mind or brain to think whatever it comes to your brain or mind.
ओके, धीरे से आंखें खोलेंगे अभी. Fine. One more time, you have to close your eyes. Now take a deep breath and you have to hold that breath जब तक मैं बोलूं नहीं. मैं ज्यादा समय तक नहीं रुकाऊंगी, don't worry. Take a long inhalation and just hold it in your body. Now try to think whatever is coming to your mind. Now slowly exhale. Normal breathing. And gently open your eyes. So, Meenu, was that difficult to think when you were holding your breath? It was. Yeah. So that is a very basic example and experiment कि आप जब सांस आपकी रोक कर रखते हो, when you are not having a good breath, your mind is stopped totally, right? तो कितना गहरा कनेक्शन है ये दिमाग का, आपके मन का और आपके ब्रेथ का. सो थोड़े बहुत प्राणायाम, थोड़े बहुत मेडिटेशन या ये सब टेक्निक और ऑफ कोर्स आसन. यू शुड नॉट इग्नोर आसन ऑल्सो, बिकॉज आसना में आप बिना कहे आपकी बॉडी और माइंड को कनेक्ट कर पा रहे हो. मीन्स राइट नाउ आई हैव टू टेल यू के बी विथ योर ब्रेथ, डू दिस, डू दैट, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू आर ऑलरेडी विथ योर बॉडी, विथ योर माइंड. तो ये सब चीजें ही आपको स्पिरिचुअलिटी, विजडम, माइंडफुलनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है. एंड व्हेन यू आर थरो विद द प्रैक्टिसेस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ sense of doing all these things. Yeah. That's true. Oh, this comes with a lot of practice actually and consistency. चलेगा, ठीक है, आप 1 महीना करके देखो, then I am sure कि ये वो स्मोकिंग के जैसा एक addiction है. Absolutely, so agree. It's total addiction. Yes. You just don't want to miss it. Yeah. Awesome. Guys, any last questions and anything that you want to now ask, anything that came up for you that you think you want to share with her, please do that. Any experiences that you want to share with this experiment, with the two, breathing exercises that we did? Anything that came up for you in these exercises? I think there are no more questions coming up. So thank you so much for the session today. Feeling very relaxed even after having a day full of lectures. Wow, thank you so much for sharing that. अगर 2 मिनट से ऐसा हो सकता है तो आपको 1 घंटे की योगा से कितना कुछ मिल सकता है. Yeah, I'm glad कि आपको फायदा हुआ. Thank you. And I think एक है कि हमने ये जो breathing exercises किए, people are seeing the immediate effect of it. People are feeling relaxed. Yes. But I think more than that, personally for me, there was a lot of inspiration. All the myths that I had about mindfulness, I suddenly realized they're so simple. Yeah. वो इतना कोई rocket science नहीं है to kind of, bring it in our lives. छोटे छोटे जो changes आपने करने को बताया, छोटे छोटे चीजें जो आपने बताई, just bringing those into awareness, being conscious of those small things is all that is needed actually. So that was a big inspiration, for me personally. Neha, thank you so much for that comment. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, we'll definitely try to do these breathing exercises. Thank you, Mansi. Please do try and let us know how does it go. हमें भी feedback अच्छा लगता है कैसे सब कुछ हो रहा है. So do let us know how is it going. All right, so
it's 7:30, and I don't want to, make you stay here, beyond the time that we have taken from you. So thank you so very much for joining us today. Thank you for sharing all the wisdom and breaking so many myths about yoga, about asanas, about breathing, about mindfulness, about meditation. And we really value these because, sometimes we tend to forget the basics, and you got us back to those basics. So really, really grateful for that. Right. Yeah. So Meenu, in the last, I just want to say कि beautiful destination नहीं होता है कभी भी. Beautiful is always journey. तो हम पता है हमेशा बोलते हैं मैं बचपन कितना ब्यूटीफुल था, जबकि आप बचपन में थे तभी आप सोच रहे रहोगे कि मेरा बड़े होके मैं ये करूंगा तो कितना मजा आएगा. So I just want to tell all the students कि you are having a very beautiful time, just enjoy it. छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं वो तो आपकी सेल्फ मेकिंग के लिए है, वो तो आपके लिए जरूरी है, तो उसे पूरी तरह लो, जियो अच्छे से, खाओ पियो पढ़ो मजे करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, चैलेंजेस लो. लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड यू आर ओनली क्रिएटिंग व्हाट यू वांट. तो आप खुद क्रिएटर हो आपकी लाइफ के, तो यू आर टोटली फ्री टू डू दैट. और अगर आपको कहीं फ्रीडम नहीं लगती तो यू कैन कन्विंस एवरीवन टू डू दैट. सो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी. लाइफ बहुत अच्छी है, हर चीज में खुश रहना सीखो, और आपको जो भी चाहिए अगर आप लगन से करना चाहोगे तो अपने आप रास्ते निकलेंगे. या